So far, we've discussed the meaning, applications, and the formulation of linear programming problems. We will now discuss how a linear programming problem is solved. Before we begin, can you tell me what an optimal solution is? The maximum or the minimum value of an objective function for the given problem is the optimal solution. But the question is, how do we solve a linear programming problem? Well, there are different ways to solve these problems. The problems having two variables can be solved graphically. Like in this example, there were only two decision variables, x and y. While in this example, we had three decision variables, and hence we can't solve it graphically. In such cases, the problems are solved using the simplex method. For now, we will be discussing the problems based on the graphical solutions. To solve a linear inequality with two variables on a graph, we will use a coordinate plane. We know that there are four quadrants in a coordinate plane. As the decision variables in a linear programming problem should satisfy the non-negativity constraint, the values of x and y should not be less than 0. It means they will lie in the first quadrant only. Therefore, to solve these problems on a graph, we need to use only this quadrant. For better understanding, let's solve this linear programming problem graphically. In this problem, we need to find the maximum profit, which is denoted by the objective function z is equal to 50x plus 18y. So let us find the values of x and y which satisfy this linear inequalities. As the solution needs to be found using a graph, let's represent these inequalities on a coordinate plane. How do we graph inequalities? We will first write the corresponding equations for these inequalities. Can you write them here? That's right. These are the corresponding equations. Next, we need to graph the lines of these equations. And we can do that by finding the coordinates of x and y intercepts. Let me help you with the x and y intercepts of the first equation. For the x-intercept, we substitute y equal to 0. We get the value of x as 50. So the coordinates of the x-intercept are 50, 0. And to find the coordinates of the y-intercept, we substitute x as 0. That gives us the value of y as 100. The coordinates of the y-intercept are 0, 100. Similarly, we get the x and the y-intercepts of the second equation. With these points, let's draw the two lines representing these two equations on a graph. Let's mark the 4 points first. With this, the first line can be drawn like this. It represents the equation 2x plus y is equal to 100. Likewise, let's draw the second line representing this equation. Give it a try. Here's the line representing the equation x plus y is equal to 80. So how will this graphical presentation help us find the optimal solution? We will first mark the feasible region of this graph. Do you know what a feasible region is? It's the common region determined by all constraints of a linear programming problem. Each point of a feasible region satisfies the linear inequalities of the problem. So, let's mark the feasible region for this problem. If we consider only these two linear constraints, all the points of this quadrant will satisfy the given inequalities. And hence this entire quadrant can be the feasible region. However, if we consider these two constraints as well, the feasible region will get restricted to the region O, A, B, and C. As you can see, the two lines intersect at point B 20, 60. The region within these four corner points is the feasible region of this problem, as each and every point of this region will satisfy the linear constraints of the problem. For instance, let's take the point 30, 40. If we substitute these values for x and y respectively in the linear inequality x plus y is less than equal to 80, we will see that the point satisfies the linear inequality. In this way,
every point within and on the boundary of the feasible region can be the feasible solution for the given problem. It means the points on and within the region satisfy the linear constraints. Then how will we find the optimal solution? Since there are many possible solutions for this problem, we will use the corner point method to find the maximum profit. Now, what's a corner point method? In this method, the solution of a linear programming problem lies on the corner point of a feasible region. The coordinates of the corner points are substituted for the values of x and y in the objective function. In this example, points O, A, B, and C are the corner points of the feasible region. We will evaluate the objective function by substituting these points as values of x and y one by one. First, let's find the value of z at point O. The coordinates of point O are 0, 0. 50 times 0 plus 18 times 0 gives us 0. Likewise, can you fill in these values of z? For the second point, we get the value of z as 1440, 2080 for the third, and 2500 for the fourth point. So we have all the four values of z at the corner points of the feasible region. Since our objective is to maximize z, the optimal solution lies at point C 50, 0 because the value of z is maximum at point C. This is how we solve a linear programming problem graphically. Let me ask you a question here. Is the feasible region of this problem bounded, or is it unbounded? To answer this question, we first need to discuss the meaning of the terms bounded region and unbounded region. And why did we choose only the corner points? And how did we find the feasible region? We will continue the discussion in our next lesson. An optimum solution is that solution which is the best possible outcome of a given problem. Before we discuss how a linear programming technique is used to solve problems, let's understand what kind of problems can be solved using this technique. Did you know that this technique is widely used in different industries? This list includes different types of linear programming problems. Let's now focus on the structure and the formulation of a linear programming problem. We first need to understand the given problem and then identify the basic elements to convert it into a linear programming problem. This process is called as the formulation of a linear programming problem. Understand it well. We first need to convert a given problem into a linear programming problem and then solve it. So there are two aspects here, the formulation part and then the solution part. Let's begin with the formulation of linear programming problems. Go through this example. We have to find the maximum profit the company can earn with the constraint. The constraint here is the production budget. But how do we approach this problem now? First, let's try to represent this problem in a tabular form. Can you give it a try? Here it is. Go through it well. Note that we have to convert this problem into a linear programming problem. And how do we do that? By writing the given problem in the form of mathematical expressions. Like in this case, the company wants to sell some number of products A and B. As we don't know the exact quantity, let's assume the number of units of product A to be X and the number of units of product B to be Y. Now, can you tell me the total cost to manufacture these many units of A and B respectively? Yes, it will be 200 times X and 150 times Y. We're just multiplying the quantity with the price. Next, let's look at the constraint. It says the production budget is $50,000. That means the cost to be incurred should not exceed $50,000. It can be less than or equal to $50,000. Can you write this constraint in the form of a mathematical expression? Here's the answer.
This expression represents the budget constraint of the problem. The total cost should not be more than $50,000. Now let's express the total demand of the two products in a similar manner. Give it a try. The combined monthly demand of the two products will not exceed 500 units. Therefore, we use the less than or equal to sign to write this expression. And which constraint does this expression represent? Yes, it represents the demand constraint of the given problem. This means if the company produces more than 500 units of products A and B in all, it might not be able to sell them. Are there any other constraints in the problem? Not really. So let's look at the profit element of the two products. Can you tell me the objective of the company in this case? The company would like to sell its products A and B in such a mix that it yields maximum profit in a month. In simple words, the company would try to maximize the profit which it can yield by selling A and B. Now let Z denote the total profit for the month. Can you write the total profit in the form of mathematical expression? The total profit Z can be written as this. It's the product of the quantity and the profit per unit. With this, we will write the objective function of this problem. The objective function in a linear programming problem is a mathematical expression of the ultimate goal. So, we have the two constraints here, a budget constraint and a demand constraint. This is how the whole problem looks in terms of mathematical expressions. This is the objective function, and these are the two constraints. There's just one thing we need to know here, and for that, I want you to answer a question. Can the number of units produced by a company be negative? You're right, it can never be negative. So we need to add the non-negative constraints. It can be written mathematically like this. It's very important to write the non-negative constraints in the formulation of a linear programming problem. Did you notice what we did? The entire problem of so many words is reduced to the simple format using mathematical language. As the problem is formulated in the linear form, it's called as linear programming. यहाँ पर जैसे डेफिनेशन लिखी हुई है, ऑपरेशन रिसर्च इज द सिस्टमेटिक मेथड ओरिएंटेड स्टडी ऑफ द बेसिस स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन एंड relationships of an organization to provide the executive with a sound scientific and quantitative basis for decision making. दोस्तों, अगर हम सामान्य शब्दों में इस ऑपरेशन रिसर्च को समझें तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके बेस पर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिस्टमेटिक स्टडी का यूज़ करते हैं, और जो सिस्टमेटिक स्टडी हमारी होती है वो हमारे प्रॉब्लम को एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंचाती है. तो अगर हम कहें कि ऑपरेशन रिसर्च एक ऐसी मेथड है या ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम हमारी प्रॉब्लम्स का एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. दोस्तों, जब हम यहाँ पे प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं तो इस सब्जेक्ट में हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलेंगी जिनका हमको सॉल्यूशन निकालना रहेगा. उनमें से एक प्रॉब्लम हमारे पास होती है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. तो आइए दोस्तों बात करते हैं हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पर. दोस्तों, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि लीनियर मीनिंग यहाँ पर क्या होता है. दोस्तों, जब हम छोटी क्लासेस में थे या फिर कई बार हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिनमें हमको वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हमको ये बोला गया है कि किन्हीं दो नंबर्स का एडिशन 12 है और उन्हीं नंबर का डिफरेंस 6 है, तब वो दो नंबर्स आप फाइंड आउट कीजिए. तब हम मान लेते हैं लेट जो दो नंबर है वो x और y दिए गए हैं. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि x प्लस वाई 12 होगा, दैट मीन्स 12 है, और इनका जो डिफरेंस है वो 6 है. तो इस तरह से हम कुछ इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं. ये जो इक्वेशन होती है और इनमें जो वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो हमेशा 1 होती है, मीन्स इनकी डिग्री जो होती है वो हमेशा 1 होती है. तो ये जो इक्वेशंस होती हैं इनको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन. ये जो इक्वेशन है ये हमारी लीनियर इक्वेशन है.
तब इनके बेस पर जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं वो हमारी होती है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यहाँ पे दोस्तों जो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है उसका मीनिंग ये होता है कि जब हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप मेथड यूज करते हैं। यहाँ पर एक प्लान बनाया जाता है जिसके बेस पर हम इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं, इसलिए यहाँ पर इन प्रॉब्लम को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहा जाता है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, ए लीनियर फॉर्म इज मीट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप a1x1 plus a2x2 plus an(xn) where a1 a2 an are constants and x1 x2 xn are variables। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था तो हमने एक इक्वेशन ड्रॉ की थी x plus y इक्वल टू 12। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ एक फॉर्म बनता है जहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट होते हैं साथ में वेरिएबल्स होते हैं, तो इस तरह से जो एक्सप्रेशन हमारा बनता है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे लीनियर फॉर्म, जहाँ पर हर वेरिएबल की जो डिग्री होगी वो यहाँ पर 1 होती है। द टर्म प्रोग्रामिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग अ पर्टिकुलर और प्लान ऑफ एक्शन। तब दोस्तों अगर हम आगे बात करें लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में, तब लीनियर प्रोग्रामिंग डील्स विद द ऑप्टिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन ऑफ अ फंक्शन of variables known as objective function subject to a set of linear equations and or inequalities known as constraint और restrictions। इसका मीनिंग ये होता है दोस्तों कि जब भी हम लीनियर प्रोग्रामिंग पर बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें दी हुई रहती हैं। फर्स्ट होगा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि हमेशा वेरिएबल्स पर काम करेगा, और इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का हमको ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना रहता है, या तो वह मैक्सिमाइज होगा या फिर मिनिमाइज होगा। साथ में हमको दिए रहते हैं कुछ इक्वेशंस, इनको कई बार इनइक्वालिटीज भी बोला जाता है, और इन्हीं को हम हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंस्ट्रेंट या फिर रेस्ट्रिक्शंस बोलते हैं। हमारी ये आ गई। तो लाइंस कौन कौन सी है? लाइन L1 ले लें, L1 ले लेते हैं ये वाली, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। लाइन तो हमेशा इक्वेशन के साथ बनेगी, और ये हो गई लाइन 2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसमें फिर से वही नोटिस करें L1 का कौन सा रीजन लेना है। अब से ओरल कर लें, 0,0 डालो, 0 इफ यू पुट 0,0 तो ये क्या बनेगा, LHS 0 इज 0 ग्रेटर देन 3 नो। तो ये क्या हो गया, रीजन अपोजिट टू ओरिजिन लिख दूं, अपोजिट टू ओरिजिन, ये तो हमें यहीं से दिख रहा है। अच्छा, इस वाले की अगर बात करें, इसमें 0,0 डालो, ये भी क्या कहता है, अरे नहीं भाई ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो क्या हुआ, LHS क्या आ गया 0 इज 0 ग्रेटर देन 2 नो। तो ये भी क्या कहता है, वो वाला रीजन लेंगे हम लोग जो कि क्या है, अपोजिट टू ओरिजिन। लेट्स नाउ ड्रॉ देम ऑन द ग्राफ। सो इस तरीके से कुछ लाइनें बन जाएंगी। मैंने ऑरेंज लाइन जो बनाई है वो L1 लाइन है। कैसे बनी जल्दी से याद कर लें दोबारा से। एक्स इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, y को 0 डालो 3, तो वो 3,0 प्लॉट कर दिया गया है, और y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, x को 0 पुट करो तो 1। सिमिलरली द ब्लू लाइन इज शोइंग योर L2 लाइन, x एंड y बोथ इंटरसेप्ट आर 2। अब की बार क्या चीज है, रीजन अपोजिट टू ओरिजिन। तो मतलब अपोजिट टू ओरिजिन क्या हुआ, ये था ओरिजिन, तो अपोजिट टू ओरिजिन मतलब इस वाले लाइन का ऊपर वाला हिस्सा और इस वाली लाइन का भी ऊपर वाला हिस्सा, क्योंकि वही रीजन अब की बार क्या होगा, अपोजिट टू ओरिजिन। क्योंकि अगर लाइन के नीचे वाला हिस्सा ले लोगे तो उसमें ओरिजिन लाई कर जाएगा, आपको वो रीजन नहीं चाहिए। तो इस बार क्या रीजन बन रहा है देखो, और आपको हमेशा क्या चाहिए, एक्स और वाई पॉजिटिव, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन होना चाहिए। तो ऐसा रीजन जो इन चारों चीजों को सेटिस्फाई करे, तो जो मैं जबरदस्त तरीके से लाइनें बना रहा हूं, ये रीजन नहीं बन जाएगा। ये नोटिस करो, ये सारा जो है, जो शेडेड मैंने मारा है रीजन, दिस इज नाउ योर व्हाट इज इट इज योर फीजिबल रीजन। ये तुम्हारा क्या बन गया अब, फीजिबल रीजन। ठीक है, तो इस बार अगर आप नोटिस करो, फिर से हाईलाइट करें, क्या जो ये रीजन बन रहा है, ये जो शायद मैं शेड करने की कोशिश कर रहा हूं पर तुम्हें हो सकता है शेड कम दिखे, क्या ये इस बार बाउंडेड है? क्वेश्चन टू यू गाइस, दिस इज नॉट अ बाउंडेड रीजन। सो इसकी बार ये क्या बना है, अनबाउंडेड। अनबाउंडेड एज एन नेम जिसकी कोई बाउंड्री ना हो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी बाउंड्री ना हो। अगर नोटिस करो, एक बाउंड्री ये आ रही है, एक बाउंड्री ये चल रही है, फिर यहां से यहां आ गया, फिर यहाँ आ गया, पर ये वाला तो सारा अनबाउंडेड है, ये कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता आगे। सो इसे क्या कहते हैं, अनबाउंडेड रीजन। सो ये एग्जांपल लेके समझना है कि अगर अनबाउंडेड फीजिबल रीजन बनता है तो हाउ यू हैव टू सॉल्व। तो पहली चीज तो फिर से इसमें कॉर्नर पॉइंट्स निकालो। तो हम कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हुए, एक तो ये हो गया जो ये आ रहा है, ठीक है, तो इसका नाम कर देते हैं बी, जिसकी वैल्यू क्या है 0,2। फिर एक ये पॉइंट आ रहा है जो कि ऑलरेडी हमें पता है क्या है 3,0, तो इसको हम 3,0 कर देते हैं, इसका नामकरण भी कर देते हैं कि ए है ये। और एक और कॉर्नर पॉइंट है जो जनरली लोग ना मिस आउट कर देते हैं, वो मिस नहीं करना है, ये वाला भी तो बाउंड्री पॉइंट है ना भाई, ये वाला। ठीक है, तो इसको हम सी डिफाइन कर देते हैं, जो कि फिर से क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2।
ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2। और उसके बाद हमें नहीं पता कि भाई जो आगे वाला रीजन है वो क्या होगा, ठीक है। तो पहले सबसे पहले फिर से वही काम करना है। अब आगे क्या मतलब फर्स्ट स्टेप, फिर से अगर लिखना हो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फाइंड सी। सी इज नथिंग बट इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें फॉर एग्जांपल हमें मिनिमाइज करना था। क्वेश्चन क्या था, यू हैव टू मिनिमाइज दिस पर्टिकुलर लीनियर एक्सप्रेशन। तो मिनिमाइज के लिए मिनिमाइज वाली टेबल बनाएंगे। मिनिमाइज करने के लिए क्या करोगे, मिनिमाइज टेबल। मिनिमाइज टेबल का क्या मतलब है, आप फिर से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू किन किन पॉइंट्स पे निकालेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स पे। मिनिमाइज टेबल विद हेल्प ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। करेंगे जल्दी से काम, ठीक है। लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। सो अगर तुम इंटरसेक्शन कैलकुलेट करते विच आई हैव नॉट डन हियर, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या रहा है, सी 3/2, 1/2, ठीक है। तो हमने टेबल बना ली जल्दी सी, जहां हमें सॉल्व करना होता है कि भाई ये लोग कहां कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। और ए, बी और सी कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। कॉर्नर पॉइंट्स पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो ए है 3,0, तो अगर 3,0 डालते हो तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है 9। 0,b डालते हो तो कितनी आ रही है, 0,2 डालते हो तो कितनी वैल्यू आ रही है 10। और अगर सी पॉइंट डालते हो तो ये देखो कितना बन रहा है, 9/2 + 5/2, 14/2 विच इज 7। हमें क्या करना है, minimum value. So what is the minimum value that you are getting right now? That is the minimum value 7 which you are getting at the corner point C. But अगर आप अभी जल्दबाजी में आंसर लिखा देते हो कि सर the minimum value of Z is 7, अगर आप ये लिखाते हो पेपर में minimum value of Z is 7, ठीक है, तो ये आंसर हो गया गलत। इसके लिए आपको सिर्फ कितने मिलेंगे, 6 में से 3 मार्क्स। क्यों, क्योंकि you have not completed the entire question right now. ये प्रॉब्लम कब आएगी, जब आपका कैसा रीजन है, अनबाउंडेड रीजन। बाउंडेड रीजन होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब यहां पर आंसर देने पे सही आंसर मिलेगा। बट ये आंसर अभी इनकम्प्लीट है। हाउ टू कंप्लीट दिस आंसर नाउ, लेट्स सी। तो अभी हमारे पास जो आंसर आया था 7। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है अनबाउंडेड रीजन के केस में, कि हमें चेक क्या करना है कि वेदर दिस 7 कैन बी अ मिनिमम वैल्यू और नॉट। तो आप ये लोग कैसे चेक करोगे, उसका पैरामीटर क्या है कि आप एक नई लाइन बनाओगे, 3x + 5y इज इक्वल टू 7। ये 7 कौन सी वैल्यू है जो आपने निकाली है, मिनिमम और मैक्सिमम जो भी आपने निकाली है वो। तो ये आपकी एक्चुअल में कौन सी लाइन बनी है, लाइन L3। नाउ योर टारगेट इज टू प्लॉट दिस L3 लाइन। अब अगर हम L3 लाइन बनाते हैं, पहले बनाते हैं फिर देखते हैं क्या समझाना है। सो ये मैंने डॉटेड जो लाइन ये बना दी है, ये है L3 लाइन। ऑब्वियसली बात है L3 लाइन C से पास करेगा, क्योंकि C की मदद से निकला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, C से ही पास करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर तुम नोटिस करो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे वो सी निकला कहां से था, L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से ना भाई, तो वो पॉइंट्स तो उसको सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। तो ये सोचना नहीं है कि कहां से बनेगी। अब अगर नोटिस करो, क्या ये जो लाइन L3 है, इज L3 लाइन इज L3 कटिंग द फीजिबल रीजन, इज L3 कटिंग द फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन देखो बना पड़ा है, ये वाला रीजन जो है, ठीक है। क्या L3 आपका, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये वाला जो है मेरा, ये फीजिबल रीजन है। देखो सारा बाउंड्री पॉइंट छोड़ देना, सी को की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कटिंग की बात कर रहा हूं। ये सारा मेरा फीजिबल रीजन है। मैंने फिर से फीजिबल रीजन को अलग एक कलर में हाईलाइट करने की कोशिश करी है। क्या आपकी लाइन 3 जो है वो इसको कहीं भी कट करती हुई निकल रही है, इसके रीजन को काट रही है किसी हिस्सों में? नो, इट इज नॉट डूइंग दिस। आंसर इज नो। एग्रीड? अच्छा, ऑब्वियसली बात है अभी नहीं काटेगी। हमें क्या करना है अब चेक कि 3x + 5y मिनिमम है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, मिनिमम। अगर मिनिमम है तो मैं एक बार फिर से एरो मार्क करता हूं। आप यहां पर क्या यूज करोगे, लेस देन का साइन। व्हाट यू विल यूज इज लेस देन 7। इसका एक रीजन बनेगा। ये रीजन क्या होगा, ओरिजिन की साइड वाला होगा, नॉन ओरिजिन की साइड वाला रीजन होगा? बताओ मुझे। ऑब्वियसली आप क्या कहोगे, सर 0,0 डालता हूं, सेटिस्फाई करा, तो ये क्या हुआ सर, ये तो हो गया ओरिजिन की साइड वाला रीजन। इस लाइन का रीजन यहां पर है, ठीक है, और आपका फिजिबल रीजन अलग है। तो क्या इन दोनों में कोई भी मैपिंग है? क्या जो रीजन इस लाइन का बन रहा है और एक जो फिजिबल रीजन बन रहा है, क्या कोई भी ओवरलैपिंग हो रही है? क्या कहीं भी ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? आंसर योर कम्स आउट टू बी नो सर। क्यों? क्योंकि ये रीजन अलग है, वो रीजन अलग है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है। इफ द आंसर इज नो, दैट मीन्स देयर इज नो ओवरलैपिंग। दिस इंप्लाइज 7 इज द मिनिमम वैल्यू। उल्टा है थोड़ा, अगर ओवरलैपिंग नहीं है तब आंसर क्या आता है, 7 इज द मिनिमम वैल्यू। तो आपने इसका मतलब क्या बोलोगे, इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या है,
7। ये कब हुआ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले आपने क्या करना है 3x प्लस वाई इक्वल टू 7 लाइन बनानी है, चेक करना है कि वो कट करती है। कट करने से प्रॉब्लम नहीं है, हमें देखना है उसका रीजन। तो आपको एक ये रीजन और बनाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, किसका, जो तीसरी लाइन बन रही है मिनिमम वैल्यू के साथ। तो जो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ रहा था कॉर्नर पॉइंट्स लेके, उसकी मदद से एक तीसरा रीजन बनाएंगे और देखेंगे क्या वो फीजिबल रीजन के साथ कहीं भी इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर वो कहीं भी इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो ये अगर रीजन, इन दोनों रीजन में कोई ओवरलैपिंग होती, अगर ओवरलैपिंग है तो आंसर क्या हो जाएगा, नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैन बी देयर। तो ना ही हम मिनिमम की बात करेंगे ना ही हम मैक्सिमम की बात करेंगे, पर यहां ओवरलैपिंग थी नहीं, तो हम लोगों ने सीधा आंसर क्या दिया, 7 इज द मिनिमम वैल्यू विच इज ऑब्टेन्ड एट पॉइंट सी। क्लियर है? चलिए